मामूली सी बात पर हमसाये ने घर में घुसकर अपने हमसाये को मुबैना तौर पर बेरहमी से कत्ल कर दिया। मुबशर हुसैन नामी नौजवान अपनी हवेली में बैठा अपने कजन और दोस्तों के साथ लूडो खेल रहा था। मामूली शोर होने की वजह से हमसाये ने छत से मुबशर हुसैन और उसके कजन पर मुबैना तौर पर ईंटें मारना शुरू कर दी और इस तरह लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन ने दोनों हमसायों की लड़ाई खत्म करवा दी और सब अपने अपने घर चले गए। मुबशर हुसैन के हमसाये ने मुबैना तौर पर अपने साथियों समेत मुबशर हुसैन के घर पर हमला कर दिया और गोलियों की बौछार कर दी। इसी असना में मुबशर हुसैन नामी नौजवान को मुबैना तौर पर गोलियां मार दी गई और वो अपने वालिद के हाथों में तड़पता तड़पता दम तोड़ गया। मुबशर हुसैन अपने भाइयों में सबसे बड़ा था और अपने वालिद का सहारा था और कुछ ही दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी, मगर जालिमों ने हंसते बसते घर को मातम कदा बना दिया। किस तरह मासूम मुबशर हुसैन जो कि अपने माँ बाप का लगते जिगर था, उसको कत्ल किया गया। मकतूल के लवाहिकीन ने किए होश रुबा इंकिशाफात। एक 18 साल नौजवान को बड़ी बेरहमी से एक मामूली सी बात पर मुबैना तौर पर उसके घर में घुसकर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। उस मासूम नौजवान की 10-15 दिन बाद शादी भी थी और अब तक जितना भी हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया उस मकतूल के हवाले से जितनी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, सभी ये कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा इंसान था, मिलनसार था, हर किसी का ख्याल रखता था, कभी किसी के साथ कोई मसला उसने क्रिएट नहीं किया। लेकिन जो उसके साथ हुआ वो बड़ा जुल्म है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस मकतूल 18 साल नौजवान की वालदा। ये दिन कभी किसी भी दुश्मन की माँ को भी, वालदैन को भी ये दिन ना दिखाए जो दिन इन लोगों को देखना पड़ रहा है। सब तो पहले भैन जी सानू बड़ा अफसोस है जो जुल्म हुआ है तुहाडे नाल, तुहाडे बेटे नाल। ये दसो कि ਇਹਨਾਂ ਹਮਸਾਇਆ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਾਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਗਲੀ 'ਚ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਣੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਤਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਅਬ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀ? ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਜੀ ਵਾਰਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਵਧੇ, ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧੇ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਵਧੇ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਰਾਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਖੇਡਦੇ ਕਿਉਂ? ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ? ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ? ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ 2 ਦਫਾ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਦੋਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਾਇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਮਸਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ? ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਸ। ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, 18 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਬਸ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੱਕਾ ਚਵਾ ਲਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਰਾ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं
उस मकतूल नौजवान के ताया, उनसे हम जानते हैं उस नौजवान के हवाले से उस दिन क्या हुआ, क्या मामला थे, बात इस हद तक क्यों बढ़ गई कि उन्होंने उसकी जान ले ली। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है आपके भतीजे का। अब बताइए, अपने भतीजे के हवाले से बताइए, उसका वैसे इलाके में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, यारों दोस्तों में कैसा रवैया था? सर बात ऐसी है कि वो इस तरह का लड़का था, इतना अच्छा लड़का था सर, जनाजे पे इतनी दुनिया रोई है, इतनी दुनिया रोई है, कोई ऐसी आंख नहीं जो नहीं रोई उसके जनाजे पर, और पूरा गांव अफसोसद है इस बात पर। इतना कमाल लड़का था, हर आदमी, हर इंसान, बुजुर्ग, बच्चा, माँ बहन, सब इतना अच्छा कमाल बच्चा था, हर इंसान रोया सर। आज तक 4-5 दिन हो गए ने, आज तक वो इंसान, हर बंदा रो रहा है। इतना कमाल आदमी था। 10-15 दिन बाद उसकी शादी थी सर। उसकी रेपुटेशन, उसका किरदार इतना अच्छा था, इतना अच्छा लड़का था कि हर इंसान रोया सर। अच्छा, शादी को 10-15 दिन बाद उसकी शादी थी, बात तय थी हाँ जी, तो अपने ही रिश्तेदारों में थी उसकी शादी? अपने रिश्तेदारों में। ठीक है, तो ये अपने वालिद का सबसे बड़ा बेटा था? ये अपने वालिद का सबसे बड़ा बेटा था। अच्छा, ये कौन लोग हैं, क्यों इस हद तक चले गए कि उन्होंने आपके भतीजे को मार डाला? बात नहीं, कोई उनसे हमारी कोई जाती रंजिश नहीं, पहले साहब का कोई रंजिश नहीं सर, किसी किस्म का कोई मसला ही नहीं उनके साथ। कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या इस तरह का कोई मसला हुआ हो सर, ऐसी कोई बात ही नहीं आज तक। कोई हमारे हमसाए हैं, बचपन से दादो परदादे से हम इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन इस तरह की कभी बात नहीं हुई। हवेली में बैठे थे, 3-4 दोस्त थे, उसके एक भाई था, एक कज़न था, बैठे थे, लूडो खेल रहे थे मोबाइल पर। लूडो खेलते खेलते फर्ज कर ले को बच्चे बैठे होंगे तो शोर हो गया। अगर सर शोर हो गया था तो उन्हें समझाना चाहिए था ना, उसे कत्ल तो नहीं ना कर देना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन वो इंसान नामी शख्स जब ऊपर अपनी छत पे चढ़ा है, पहले उसने गाली गलौज शुरू की है, फिर सर उसने ना ईंटें मारनी शुरू कर दी हैं उन बच्चों को। और जब ईंटें मारी तो एक ईंट, बड़ी ईंट मेरे ना दूसरे भतीजे की टांग पे लगी, उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई। जब टांग फ्रैक्चर हुई है तो फिर दूसरे सारे महल्लेदार ये वो इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हुए हैं तो थोड़ा सा मसला बना है, फिर बड़े पड़ गए बीच में। पहले हमारे गेट के सामने होके हमें फायर मारे, हम साइड पे हो गए, लेकिन यहाँ पे भी फायरिंग हुई है? हाँ, हम पे भी फायरिंग हुई है। अच्छा। लेकिन हम बच गए। जब हम अंदर गए हैं तो ये लड़का हवेली में था, ये हवेली में अकेला था। जब इन्होंने फायरिंग किया, ये लड़का हवेली से भाग के अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकला, और जो में लड़का सामने खड़ा था, 15 से 20 फुट के फासले से उस लड़के को इसने टारगेट कर दिया। स्ट्रेट फायर किया? स्ट्रेट फायर किया, सीधा फायर किया, और उसके पेड़ में लगा, और मतलब मौके पे उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन हम उसे हॉस्पिटल ले गए जनरल, लेकिन वो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वज़ीर आला साहबा मरियम साहबा कहती हैं कि मैं सबकी माँ हूँ। सर खुदा के लिए चलो अपना बेटा ना समझ के सही, किसी का बेटा समझ के सही, किसी गरीब का बेटा समझ के हमारी हेल्प कर दें।